Dear students, today we are going to discuss microscope. Question is this: what is it? Then we used to say it is an instrument which is used to see very small objects by magnifying its size. This very microscope word is framed from two words, micro plus scope. Here micro means tiny objects, very small objects. Means and a scope means you can say here instrument used to see anything. Then simply we can say instrument which is used to see very small objects by increasing its size is your microscope. There are two types of microscope. One is known as simple microscope. In this very simple microscope, it will also magnify something, tiny objects. Its magnifying power is less, near to 10. यह नियर 10 गुना जो है, नियर अबाउट 10 गुना या उससे कम तक जो है यह मैग्नीफाई कर सकता है, राइट. It has only one convex lens. In this very instrument, only one convex lens is used. Now come over second, which is known as compound microscope. Means first one is your simple microscope and second one is your compound microscope. Its magnifying power is more, near about 1000. See the difference between simple microscope and compound microscope. No doubt both are microscope, means both are used to see small tiny objects, but magnifying power of one is less whereas another is more. In this very case of compound microscope, two convex lenses are used, right? Now we will discuss both instruments one by one. First come over simple microscope. This very instrument consists of only one convex lens whose focal length will be less. यह इंस्ट्रूमेंट जो होता है इसमें जो है एक ही कॉन्वेक्स लेंस होता है और उसका जो फोकल लेंथ होता है वह कम होता है. As it simply magnifies by a small amount, that's why its lens is also known as simple magnifying glass. Now, no doubt, as it magnifies lenses, as it magnifies anything, tiny objects, then in case of microscope, we study magnification at the time of two conditions, right? मीन्स यह जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है मैग्नीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, राइट. एंड वी आल्सो नो दैट आवर रेंज ऑफ विजन ऑफ ए गुड ह्यूमन आई इज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी. 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक के बीच में कभी भी ऑब्जेक्ट रहेगा, मीन्स इमेज बनेगा, वी कैन सी, राइट. तो हम लोग यहाँ जो मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा, जो मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे केवल दो केस का पढ़ते हैं. एक सबसे कम नज़दीक वाला, जब मीन्स व्हेन आवर इमेज विल फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मीन्स नियर पॉइंट मीन्स 25 सेंटीमीटर, एंड सेकेंड व्हेन इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी. केवल यही दो केस हम लोग स्टडी करते हैं, राइट. केस नंबर फर्स्ट इज व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट vision whose value is 25 centimeter. In this very case, our eye will be in strained condition. Right? And second is your when final image is formed at infinity,
जब मेरा जो है सेकेंड इमेज जो है, सेकेंड केस हम लोग स्टडी करते हैं जब मेरा इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। जब इन्फिनिटी पर मेरा इमेज बनता है, एट दैट वेरी टाइम आवर आई इज इन रिलैक्स्ड कंडीशन, राइट। तो एक वह अंतर यह है कि जो है जब इमेज मेरा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनता है, डिस्टिंक्ट विजन पर बनता है, उसमें मेरा जो है आई जो होता है स्टैंड कंडीशन में होता है, और दूसरी बार में मेरा आई जो होता है रिलैक्स्ड कंडीशन में होता है, राइट। Now come our first case when final image is formed at least distance of distinct vision। जब मेरा फाइनल इमेज जो है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगा विच इज योर 25 सेंटीमीटर, मीन्स मेरा जब इमेज जो बनेगा नियर पॉइंट पर बनेगा। इन दिस वेरी केस, इस केस में मेरा आई जो होता है स्टैंड कंडीशन में होता है, राइट। See this very figure. It is your lens, convex lens. This means it is your convex lens of your setup, your simple microscope. माइक्रोस्कोप का जो है यू कैन से थोड़ी देर के लिए कहिए उसका कोई फिगर नहीं दिखाया गया है, केवल लेंस को दिखाया गया है। और यू कैन से थोड़ी देर के लिए कि जो है as it consists of only a convex lens of short focal length, इसलिए जो है केवल एक लेंस को यहाँ पर दिखाया गया है, राइट। एंड जस्ट बिहाइंड आवर लेंस देयर इज आवर आई, बिकॉज फाइनल इमेज विल फॉर्म एट आवर आई, देन एंड ओनली देन वी कैन सी एनीथिंग, राइट। तो जो है लेंस के पीछे जो है हम लोग अपने आई को रखे हुए हैं, राइट। नाउ सी हियर, लेट अस सपोज योर ए बी इज योर ऑब्जेक्ट। यह देखिए आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। हम लोग इसमें टिप का, इसका जो ऑब्जेक्ट के टिप का इमेज बनाएंगे। एंड इट इज वेल नोन फैक्ट टू यू ऑल दैट फॉर फॉर्मिंग इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट देयर इज नीड ऑफ टू रेज। तो सबसे पहले हम लोग जो है टिप का इमेज बनाएंगे, तो टिप से 2 रे लेकर के चलेंगे। सी है हमने यहाँ जो लिया है, 1 रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला है, और यह जो है अल्टीमेटली यह फोकस से पास होकर के निकल गया, राइट। एंड सेकेंड रे इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। जब ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो विदाउट एनी डेविएशन इट पासेस लेंस, राइट। तो यह दोनों जो रे आ रहे हैं, लेट अस सपोज योर आई इज हियर, तो आपको क्या लगेगा दोनों रे कहाँ से आ रहे हैं? रियल इंटरसेक्शन विल नॉट टेक प्लेस। हम लोग पीछे बढ़ाएंगे, देन व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि बोथ आर मीटिंग, बोथ रेज आर मीटिंग हियर, देन वी कैन से finally our final image will form here, or you can say rays are coming from this very point object, right। तो जहाँ से रे आ रहा है we can say कि जो है our object is there, or you can say image is forming there, right। it means that this will be image. Now see here, we have got an extended image or not। हम लोग यहाँ पर एक जो है मैग्नीफाइड इमेज पाए हैं, means your object is AB and our image is A dash B dash, which is a magnified image, right। We have placed our object at a distance x from the optical center or from the lens, and the image which we are getting, that is at लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मीन्स यू कैन से हमने अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह से लिया है कि उसका फाइनल इमेज जो है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विच इज 25 सेंटीमीटर वहाँ पर बन रहा है। और इस लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का नोटेशन जो हमने दिखाया है दैट इज योर 25 सेंटीमीटर, राइट। वंस अगेन सी हियर, we have placed our object AB at a distance x
or at a such distance so that image is forming at least distance of distinct vision. Your image is A dash B dash, right? Now नो डाउट यह जो लेंस है आपके इमेज को मैग्नीफाई कर दिया, यह जो लेंस है आपके इमेज को मैग्नीफाई कर दिया, बड़ा कर दिया। लेकिन इसका जो है अगर इसने मैग्नीफाई किया है तो इसके लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं एंड दैट वेरी टर्म इज मैग्नीफाइंग पावर। यह जो मैग्नीफाई किया है तो कितना मैग्नीफाई किया है, और यह जो मैग्नीफाइंग पावर जो हम लोग डिफाइन करते हैं रियली व्हाट इज इट, दिस वेरी मैग्नीफाइंग पावर इज डिनोटेड बाय साइन m। तो इसको हम लोग दिखाते क्या है कि यह जो लेंस जो है कितना मैग्नीफाई किया, यह जो माइक्रोस्कोप है कितना मैग्नीफाई किया, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं इट इज रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई के पास कितना इमेज कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आवर आई इज जस्ट बिहाइंड लेंस, आवर आई इज जस्ट बिहाइंड लेंस। सो हम लोग जो एंगल फॉर्म कराने की बात करते हैं हम लोग लेंस के पास ही करते हैं। देन वी यूज टू से मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप, ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई। तो इमेज एंगल सबटेंड करने की बात क्या होगी, देन सी हेयर इट इज़ योर इमेज, यह आपका इमेज है। तो यह इमेज आँख के पास कितना एंगल बना रहा है, तो हम लोग इसको पढ़े हुए हैं मैथ्स में क्लास 9-10 में कि जो है उस लाइन के दोनों एंड से रे लेकर के चलिए, दोनों एंड से रे लेकर के चलिए और उस पॉइंट तक ले जाइए। जितना एंगल बनाएगा दैट विल बी एंगल मेड बाय दी दैट वेरी लाइन at the given point, right? It means that here we can see कि जो image है that very image is forming angle beta at the eye, right? At the beta at the eye। तो मैग्नीफाइंग पावर जो डिफाइन करते हैं it is we used to say it is ratio of angle subtended by image at the eye which is your beta to angle subtended by the object at the eye। then one question is here, और उसको हम लोग यहाँ अल्फा दिखाए हैं। then one question is here कि your object is placed within 25 centimeter within least distance of distinct vision which can't be seen by our eye। so यहाँ पर जो हम लोग ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन लेते हैं कि कम से कम मुझे जो ऑब्जेक्ट दिखेगा एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसलिए ऑब्जेक्ट के पोजीशन को हम लोग एक्स डिस्टेंस से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ले जाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ ले गया है ए बी को लाया है यहाँ पर ए डबल डैश बी डैश एंड वी यूज टू राइट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज द रेशियो ऑफ angle subtended by image at the eye when formed at least of distinct vision to angle subtended by object at the eye when placed at least distance of distinct vision, right? मतलब कि जो हमने ऑब्जेक्ट को भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर फॉर्मूले में पहुंचाया। क्यों पहुंचाया, क्योंकि यहाँ पर जो है यह दिखाई नहीं पड़ेगा जो है अगर विदिन 25 सेंटीमीटर रहेगा तो। एंड देन वी यूज टू राइट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट टू द एट द आई when both are at least distance of distinct vision from the eye। जब आँख से दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज जो है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रहेंगे तब जो है जितना एंगल बनेगा दोनों के द्वारा सबटेंड किया जाएगा उसका रेशियो जो होगा मैग्नीफाइंग पावर होगा। इट मीन्स दैट वी कैन राइट
M will be equal to angle subtended by the image at the least distance of distinct vision, means when placed at least distance of distinct vision, or you can say angle subtended by the image when formed at least distance of distinct vision to angle subtended by the object when placed at least distance of distinct vision, right? अभी हमने बताया कि यह m से डिनोट किया जाता है, और हमने जो एंगल लिया, इमेज जो एंगल बना रहा है आई के पास, लेंस के पास, दैट इज बीटा, और जो ऑब्जेक्ट बना रहा है अल्फा, सो वी कैन राइट m विल बी इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, राइट? एंड नाउ कम हियर, एज आवर ऑब्जेक्ट इज वेरी टाइनी, बहुत छोटा है, इट मीन दैट अगर बहुत छोटा है तो यह जो एंगल बनाएगा दैट विल बी आल्सो वेरी वेरी स्मॉल, और नॉट, और नो डाउट वी आर गेटिंग मैग्नीफाइड इमेज, लेकिन वह मैग्नीफाइड इमेज होगा दैट विल बी आल्सो वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा बहुत बहुत ही छोटा होता है। तो 10 गुना अगर मान लिया जाए कि एकदम बहुत छोटा हो तो 10 गुना जो भी होगा वो भी बहुत छोटा होगा, मीन्स द एंगल विच विल बी फाउंड बाय इमेज एट द आई दैट विल बी आल्सो वेरी वेरी स्मॉल। और हमने यह पढ़ा है कि इफ एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल देन टेन थीटा एंड साइन थीटा टेंड टू थीटा। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा जो है दोनों स्मॉल है, सो वी कैन राइट as beta is tending to 0, so tan beta will tend to beta. It means that beta के जगह हमने beta लिख दिया, and in the similar manner here alpha is also tending to 0, so we can write alpha will tend to tan alpha. That's why we can write m will be equal to beta by alpha, which is equal to tan beta by tan alpha, right? अब नाउ लिसन, टेन बीटा का वैल्यू कितना होगा, टेन अल्फा का वैल्यू कितना होगा, तो जरा सा आ जाइए, वंस अगेन कम ओवर फिगर, टेन बीटा, सी हियर, टेन बीटा, फर्स्ट यू कम ओवर इन बिगर ट्रायंगल, this tan beta will be equal to a dash b dash by tan beta, here this very angle is beta, so tan beta will be equal to a dash b dash by o b dash, or not, we can write, but listen my dear, यह जो है इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश, तो वही एंगल तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आई के पास बना रहा है, मीन्स ए बी भी बना रहा है, सो हियर वी यूज टू राइट टेन बीटा इज इक्वल टू ए बी बाय ओ बी, वी यूज टू राइट टेन बीटा इज इक्वल टू AB by OB, right? Then and let us suppose height of the object is h, means let us suppose AB equal to h, right? And OB will be your x, right? And then tan alpha, see here alpha is this very small angle, यह छोटा एंगल जो है that is alpha, तो अल्फा क्या है, what was alpha? Angle made by object at the eye when placed at least distance of distinct vision. It means that tan alpha will be equal to a double dash b dash by OB dash, a double dash b dash by OB dash, a double dash b dash कितना होगा, then that will be equal to same as AB means h, but OB dash will be equal to D, which is your least distance of distinct vision, right? So we can write M will be equal to AB by OB, we can write 10 beta equal to AB by OB, right? We divided by 10 alpha equal to a double dash b dash by OB dash, right? यह जो है बाई आ रहा है, जब इसको आप जो है सिंप्लीफाई करेंगे देन इट विल बिकम AB by OB by, and listen,
A double dash B dash, A double dash B dash is equal to AB. So we can write it will be equal to AB by OB divided by AB by OB dash. And after simplification, AB cancel हो जाएगा and we will get OB dash by OB. Now question is this, what is OB dash? Then OB dash is your position of image, which is your least distance of distinct vision, and when you will use proper sign convention, then OB dash will be equal to minus D, right? And OB was position of object from the eye, which is your X, and again when you will use proper sign convention, then it will be minus X. So M will become M equal to minus D by minus X, minus and minus cancel, so it will become D by X. And we can say magnification M equal to D by X, right? अब लिसन है, यहाँ आ तो गया मैग्निफिकेशन इक्वल टू डी बाई एक्स. हम लोगों को यही पता करना था, डी इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी बट एक्स इज ए वेरिएबल क्वांटिटी. एक्स का वैल्यू बदलेगा जो है, आप पोजीशन बदल सकते हैं. लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो वैल्यू आ रहा है दैट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी 25 सेंटीमीटर, लेकिन जो एक्स है आपका दैट इज ए वेरिएबल क्वांटिटी. सो वी विल चेंज हेयर डी को हम लोग चेंज करेंगे. क्वेश्चन इज दिस, इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट चेंज करेंगे, राइट? Then in this way, in this very formula, to change x, we will use length formula, and your length formula is 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f, right? Then see here, let us suppose focal length of the lens is f. Then your u will be minus x, object मेरा minus x पर हो जाएगा, right, by using proper sign convention, and V image is forming at a distance D, means 25 centimeter from the lens, so V will be equal to minus D. And we know that lens formula is 1 by V minus 1 by U equal to 1 by F, right? Upon using these three values in this very equation, we will get 1 by minus D minus 1 by minus x equal to 1 by f. अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए. 1 बाई एक्स जो है कि आगे माइनस 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो योर इक्वेशन विल बिकम 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ, राइट? अब जो है दोनों साइड में न्यूमरेटर में आप डी से इंटू कर दीजिए. देन इट विल बिकम डी बाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस डी बाई डी 1 प्लस डी बाई एफ. इट मीन दैट डी बाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ. एंड दिस वेरी वैल्यू जो डी बाई एक्स का वैल्यू आया है, आपने जो मैग्निफिकेशन निकाला था that by d by x, it means that in place of d by x we can write 1 plus d by f, right? And then your expression will become magnification equal to 1 plus d by f. Magnification will be equal to 1 plus d by f. Now पहला जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया था d by x. This very x is variable quantity, but now the formula which we are getting, it is 1 plus d by f. 1 is constant, d is constant, and f will be also constant for a lens. Means we can say when our final image will form at least distance of distinct vision, at that very time magnifying power of a lens having focal length f will be equal to 1 plus d by f. 1 plus d by f, right? Now what we are observing here, magnification is inversely proportional to focal length. Magnification is inversely proportional to focal length. It means that when focal length will be less, magnifying power will be more.
फोकल लेंथ जब मेरा कम होगा मैग्नीफाइंग पावर अधिक होगा। इस बात को समझने के लिए जरा वंस अगेन फिगर पर आइए। तो वंस अगेन कम ओवर फिगर कि व्हेन फोकल लेंथ will be less magnifying power will be more. It means that see here f point of the here is f point of the lens मीन्स इतना डिस्टेंस फोकल लेंथ होगा। इट मीन दैट जैसे जैसे मेरा फोकल लेंथ अगर कम होता जाएगा इमेज जो मेरा है वह बड़ा बनता जाएगा, और फोकल लेंथ कम और बड़ा इमेज, और फोकल लेंथ और वो कम और बड़ा इमेज। इट मीन दैट वी कैन से मैग्नीफाई इन दिस वेरी केस व्हेन image will form at least distance of distinct vision, magnifying power will be equal to 1 plus d by f, and magnifying power equal to 1 plus d by f, and we can say it is inversely proportional to focal length, right? One more thing, question is this कि what will be its unit, इसका यूनिट क्या होगा? तो जरा ध्यान से देखिएगा। शुरू में जो फॉर्मूला हमने निकाला था m इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, एंगल बाय एंगल, सेम यूनिट बाय सेम यूनिट, सो एंगुलर मैग्निफिकेशन शुड बी यूनिटलेस क्वांटिटी। एंड नाउ सी हेयर, यहाँ देखिए m इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ, हमने क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था डायमेंशन में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। हेयर m इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ, m will have same unit as 1 और डी बाय एफ। 1 क्यों लेंगे तो 1 यूनिटलेस क्वांटिटी है, सो m विल बी आल्सो यूनिटलेस क्वांटिटी, जो कि यहाँ से मैच कर रहा है। डी बाय एफ लेंगे, डी इज डिस्टेंस, एफ इज डिस्टेंस, so meter by meter unitless, again we can say m will be unitless quantity, means magnifying power of a lens is a unitless quantity, right? Now come over कि what will be value of magnifying power of the lens when final image will be formed at infinity। हमने यह भी आपको बताया था कि when a final image will form at infinity, in that very case our eye will be in relaxed condition, means what will be magnifying power when our eye will be in relaxed condition। See this very figure। Now come over, you want to say कि जब मेरा फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, तो हमने पढ़ा है इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस व्हेन वी प्लेस आवर ऑब्जेक्ट at focus point in focal plane, in that very case our image forms at infinity। Then see here, it is your convex lens and AB is your object। इसको हमने F पॉइंट पर रखा है, मीन्स फोकस पॉइंट पर रखा है, मीन्स डिस्टेंस ऑफ O, डिस्टेंस बिटवीन F एंड O विल बी फोकल लेंथ, राइट? ये दिखाया गया है। अगेन देखिए अब इसमें इमेज मेरा कैसे बनेगा। आवर आई जस्ट वी हैव प्लेस्ड आवर आई जस्ट बिहाइंड लेंस, ए बी इज योर ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट फोकस पॉइंट। वी विल ड्रॉ इमेज ऑफ टिप, टिप से 2 रे लेकर के चलिए। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, एंड सेकेंड रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इट विल पास लेंस without any deviation। Now see here, the 2 refracted rays which we are getting, they are parallel to each other, so real intersection will not take place। Now produce these 2 rays in backward direction, तो backward direction में मिलेंगे, तो दोनों कहाँ मिलेंगे? Again both will meet at a very very far distance, mean infinity। It means that final image will form at infinity। It means that final image will be highly extended, तो यहाँ मैग्नीफाइंग पावर क्या निकालेंगे? अगेन मैग्नीफाइंग पावर विल बी इक्वल टू एंगल फाउंड बाय इमेज व्हेन फॉर्म्ड। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस विल बी इक्वल टू एंगल मेड बाय इमेज एट आई। इमेज कहाँ बन रहा है? व्हेन फॉर्म्ड एट
infinity to angle made by object when placed at least distance of distinct vision। यहाँ पर प्लेस्ड फोकस पॉइंट पर है। अगर फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर से कम रहेगा तो ऑब्जेक्ट मुझे नहीं दिखेगा। तो ऑब्जेक्ट को जो है देखने के लिए हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर करें। सो हम लोग जो बाय में एंगल लेंगे, अल्फा का वैल्यू लेंगे जो है, दैट विल बी एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसलिए देखिए दूसरा फिगर में जो है दिखाया गया है ऑब्जेक्ट ए बी को जो है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी पर लिया गया है, राइट। तो इस केस में हमने ऑब्जेक्ट को ए बी डैश ले लिया है, ए बी डैश, सिंगल डैश, ए बी डैश, राइट। देन क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी मैग्निफिकेशन, व्हाट विल बी एंगुलर मैग्निफिकेशन, राइट। देन सी हियर व्हाट विल बी मैग्नीफाइंग पावर। यहाँ पर हम लोग फिर मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करेंगे एंड हेयर वी विल राइट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस विल बी इक्वल टू, और माइक्रोस्कोप विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ द एंगल फाउंड बाय द इमेज व्हेन सिचुएटेड एट इंफिनिटी एट द आई टू एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन सिचुएटेड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट vision। means magnifying power of the lens is equal to ratio of the angle found by image at the eye when formed at infinity to angle subtended by the object at the eye when formed or when placed at least distance of distinct vision। It means that we will write m equal to beta by alpha। Again both beta and alpha are very very small, so it will be equal to 10 beta by 10 alpha। Question is this, what will be value of 10 beta and 10 alpha? For that again come over figure। See here, final image is forming at very very far distance। final image जो मेरा बन रहा है बहुत दूर में बन रहा है, राइट। फाइनल इमेज जो मेरा बन रहा है बहुत दूर में बन रहा है। तो एंगल फाउंड बाय इमेज एट द आई ये वाला होगा। लेकिन हम लोग इसको ना लेकर के कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट भी तो मेरा एंगल जो बना रहा है दैट इज द सेम बीटा। सो हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल ले लेंगे एंड वी विल राइट 10 बीटा इक्वल टू ए बी बाय ओ बी। 10 बीटा इक्वल टू ए बी बाय ओ बी, राइट। एंड ए बी विल बी एच, AB will be H, AB will be H and OB will be F। And 10 alpha will be equal to AB dash, 10 alpha equal to AB dash by OB dash। AB dash is your H and OB dash is your D। क्वेश्चन है दिस कि यहाँ AB डैश क्यों ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो AB है। तो क्योंकि जो है फॉर्मूला में अभी आप देखेंगे कि AB कट जाएगा, लेकिन रियली क्या है, इसलिए हम लोग AB डैश ले रहे हैं ताकि जो है कि जो है ये मेरा जो है वहाँ पर अगर B ले लेते तो फिर ये मेरा OB हो जाता और यहाँ भी OB हो जाता। हेयर OB इज F बट हेयर OB इज D, दैट्स वाई यहाँ पर हमने OB डैश लिख दिया है फॉर्मूले में। So m will be equal to beta by alpha, which is equal to 10 beta by 10 alpha, right? And 10 beta will be equal to AB by OB and 10 alpha will be equal to AB by O dash B, right? After simplification AB cancel हो जाएगा and it will become OB dash by OB, right? Then now question is what will be value of OB dash? What will be value of OB dash, right? तो देखिए तो जरा सा हमने यहाँ पर AB by OB का वैल्यू लिख दिया है। AB by OB इज इक्वल टू AB वाज योर H और यह व्हेन यू विल यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन तो AB मेरा ऑब्जेक्ट हाइट था विच इज अबव प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट विल बी विद प्लस साइन, सो इट विल बिकम HY and OB is your focal length, so it will be equal to minus F।
and O dash B will be your least distance of distinct vision D. So it will become m will be equal to h by minus f डिवाइडेड बाय h by माइनस d. h कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं h by माइनस f डिवाइडेड बाय h by माइनस d, which will be equal to h by minus f into minus d by h. h cancel, minus minus cancel, it will be equal to d by f, and that's why we have written m equal to d by f, right? M will be equal to d by f. It means that m will be equal to d by f. पिछला जो फॉर्मूला में आया था, मीन्स जब इमेज मेरा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बन रहा था, तो उस समय आया था m इक्वल टू 1 प्लस d बाय f. But here, when image is forming at infinity, we are getting angular magnification, or you can say magnifying power, m equal to 1 plus d by f. Sorry, here we are getting m equal to d by f. It means that from this we can say, in case of when final image will form at infinity, magnification will be less than by 1. इन केस जब इस केस में जो बन रहा है उससे 1 मेरा जो है मैग्नीफिकेशन कम बनेगा इस केस में, राइट? Magnification produced in case of infinity is 1 less than magnification produced in the case of when image forms at least distance of distinct vision. But in both cases, m is inversely proportional to focal length, right? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, दोनों फार्मूला को याद रखिएगा. फार्मूला से क्वेश्चन बनता है m इक्वल टू in case of when final image forms at least distance of distinct vision, m equal to 1 plus d by f. But when final image will form at infinity, m will be equal to m equal to d by f, right? Always keep in memory these two formula. इन दोनों फार्मूला को मेमोरी में ऑलवेज रखें, इससे हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होता है, राइट? ओके.